Chale, so we'll start now. So I'll request everyone to get ready with their notes copies. On the header of each page for today, write down the date, subject, roll number, name, section. In the last class, we had seen about operator overloading, how it is being done. Unary operator and binary operator, both we have seen. We have seen the syntax and how to use it practically. We have seen the program. So today we'll continue with our discussion. Today we'll learn about friend functions. So what are friend functions? So by definition, remember that friend functions are not member functions. It's very important to understand that friend functions are not member functions, but they act as member functions in the sense that they can access all the members in the class. So it is a very strange kind of function. Friend functions are very strange kind of functions which are not member functions but have access to each and every member in the class. That is, a friend function can access private, protected, public members of the class. But here an important point to be remembered is that we inside the friend function there should be an object of the class. Then only it can access the private, protected and public members of the class. So जब तक फ्रेंड फंक्शन के अंदर में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता. So friend functions, as they are not members of the class, they require an object of that particular class in which they are declared to access the private, protected and public members. So friend functions need to be declared in a particular class. The members of which we want to access through the friend function. ठीक. So जिस क्लास के मेंबर्स को आपको एक्सेस करवाना है उसी क्लास के अंदर में फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है. और फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन के अंदर में उसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ओनली the members can be accessed. The keyword friend is used while declaring the function. So normal जैसे प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आप करते हैं फंक्शन का, वैसे ही करना है, सिर्फ आपको फ्रेंड कीवर्ड ऐड कर देना है. जैसे हम स्टैटिक मेंबर्स बनाते थे तो स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर देते थे. Similarly, when we are creating friend function, we just need to add the keyword friend as prefix to the prototype of the function. So they don't belong to any specific class, but they need to be declared in a specific class. ठीक. So ये किसी क्लास के मेंबर तो है नहीं, लेकिन जिस क्लास के मेंबर्स को आपको एक्सेस करवाना है उसके अंदर आपको जो है इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो फ्रेंड फंक्शंस में क्या होता है कि वो मेंबर फंक्शंस तो होते नहीं है, लेकिन जिस भी क्लास के अंदर से आप उसको बनाएंगे, जिस क्लास के अंदर में, उस क्लास के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा. बशर्ते क्या है कि एक ही शर्त है उसमें कि ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैज टू बी यूज्ड. दे कैन बी इन्वोक्ड एज ऑर्डिनरी फंक्शंस विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट. सो क्योंकि वो मेंबर्स तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे उनको. सो विदाउट ऑब्जेक्ट आप उनको कॉल कर सकते हैं. जैसे नॉर्मल फंक्शंस को हम कॉल करते हैं वैसे ही हम उसको कॉल करेंगे. सो फ्रेंड फंक्शंस जो है दे कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास. Here also they are defined like ordinary functions and not like member functions. So हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे कैसे वो बनाया जाता है. The access specifiers do not affect the visibility of the friend functions. ठीक. So चाहे वो पब्लिक आप मोड में हो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, कोई भी मोड में उसमें आपने फ्रेंड फंक्शन को रखा हो, it does not affect the visibility. It is accessible outside the class, no problem. बिकॉज वो क्लास का मेंबर है ही नहीं, तो आउटसाइड द क्लास का कॉन्सेप्ट कुछ खास बैठता नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी फंक्शन जैसे आप उसको कॉल कर सकते हैं.
तो एक तरीके का कह सकते हैं कि क्लास के अंदर में आपने एक लूप होल छोड़ दिया है. फ्रेंड फंक्शन इज जस्ट लाइक ए लूप होल इन द क्लास वेयर you are able to access all the members but it is not the member function. So ये concept java में हटा दिया गया है because it creates a lot of problems. So friend functions is not a very good concept to implement. So it is being removed, and it does not exist in languages which have come after C++. So in a program, a friend function with the same name and same input arguments can only be defined once. Multiple definitions of that friend functions are not allowed. So एक ही ओवरलोडिंग नहीं कर सकते आप. ठीक. सो इसको ध्यान रखना पड़ता है. इन ऑर्डर टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ सॉरी ओवरलोडिंग कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शंस को, लेकिन एक ही नेम से एक ही इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट से आप फ्रेंड फंक्शंस को बार बार नहीं बना सकते. वो तो खैर सभी को मालूम है. तो आप जैसे एक ही नेम से आप जो है बार बार डिक्लेरेशंस नहीं कर सकते, वेरिएबल्स को अलग अलग नेम से डिक्लेयर करना पड़ता है, वैसे सिमिलरली ऐसा ही इसमें भी फॉलो होगा. ठीक. सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रेंड फंक्शन को जो है बनाते वक्त सिंटैक्स फॉलो जो करना ये रहेगा. फ्रेंड कीवर्ड आएगा, उसके बाद रिटर्न टाइप आएगा, फिर फंक्शन नेम आएगा, फिर इनपुट आर्गुमेंट्स का लिस्ट आएगा. सो इस टाइप से आप जो है फ्रेंड फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं. तो लेट अस सी एन एग्जांपल. सो आई विल गो टू द कोडिंग स्क्रीन एंड गिव यू द एग्जांपल हियर. ठीक. किसी भी पॉइंट में समझ में ना आए तो प्लीज पूछिएगा. सर कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग में मैंने रखा हुआ है, सभी ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें किसी को डिनाई नहीं हो रहा है. एनीबडी कैन ज्वाइन. ठीक. कोडिंग स्क्रीन सबको दिख रहा है. द कोडिंग स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. यस सर. ओके, थैंक यू. सो हम लोग फ्रेंड फंक्शंस के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं. सो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले बिना क्लास के एक फ्रेंड फंक्शन बनेगा नहीं. सो हम एक क्लास बनाएंगे. तो आई हैव क्रिएटेड क्लास ए. क्लास ए के अंदर में से वी हैव अ डेटा मेंबर इंट डी इज प्राइवेट and some protected members, say protected member, say it is say int d, say d1 d2 बना लेते हैं. प्राइवेट डेटा मेंबर d1 है, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर d2 है, और पब्लिक में कुछ फंक्शंस बना देते हैं जैसे void fill. तो void fill में दो इंटीजर वैल्यूज दे देते हैं i, j. D1 के अंदर i को स्टोर कर लेते हैं, D2 के अंदर j को स्टोर कर लेते हैं. फिल हो जाएगा, void show यूज करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, सी आउट करा देंगे \n d1 इक्वल टू d1 का वैल्यू एंड \n d2 इक्वल टू d2 का वैल्यू. सी आउट करा देते हैं यहाँ से. ये हो गया अपना शो फंक्शन बन गया. और शो फंक्शन बनने के बाद एक हम फ्रेंड फंक्शन बना रहे हैं. फ्रेंड फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे. फ्रेंड void से f1 करके बना लेते हैं, फ्रेंड फंक्शन f1. तो नाउ फ्रेंड फंक्शन को हम यहाँ पे डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं. आप चाहे तो यहीं पे डिफाइन भी कर सकते हैं. तो अभी मैं इसको डिक्लेयर करके यहीं पे छोड़ रहा हूँ. अब हमको याद रखना पड़ेगा कि फ्रेंड फंक्शन को जहां पर ने डिक्लेयर किया है, याद रखना है कि बाद में उसको डिफाइन करना जरूरी है. तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ बाहर में. सो अब देखिए, उसको डिफाइन करते वक्त देखेंगे हम फ्रेंड फंक्शन है,
तो उसको नॉर्मल ऑर्डिनरी फंक्शन जैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ना तो मैंने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया, ठीक है, ना तो क्लास नेम मेंशन कर रहा हूँ। इट इज जस्ट लुकिंग लाइक ए सिंपल फंक्शन, ऑर्डिनरी फंक्शन, ठीक है। ये नॉन मेंबर फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अगर ये मेंबर फंक्शन होता तो वॉइड लिख के ए डबल कोलन F1 ऐसे लिखना पड़ता। तो ये चीज हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हम लोग जो है सिंपल एज ए ऑर्डिनरी फंक्शन जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे। लेकिन इसमें इसका स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि F1 फंक्शन, एज F1 फंक्शन is friend declared inside class A, so it can access all the members of class A using the object of class A. So class A का एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ क्लास A का, तो OB1 करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। OB1 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक काम करते हैं, इसके आर्गुमेंट में डालते हैं OB1, क्योंकि हमको रेफरेंस चाहिए रहेगा ऑब्जेक्ट का। सो यहाँ पे हमने जो है क्लास A का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया, ये इनपुट आर्गुमेंट में है। अब इस इनपुट आर्गुमेंट में जो क्लास A का ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके हम D1 D2 फिल शो सभी को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम से फिल फंक्शन OB1 डॉट फिल फंक्शन कॉल कर सकते हैं, OB1 डॉट शो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सी आउट करा सकते हैं \n D1 इक्वल टू OB1 डॉट D1। देखिए प्राइवेट मेंबर है, क्लास के बाहर से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। सी आउट \n D2 इक्वल टू OB1 dot D2 is protected data member, then also it is accessible from outside the class. So इस कोड को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि OB1 यूज हो रहा है सब जगह। देखिए OB1 इज कॉमन, बिकॉज बिना ऑब्जेक्ट के आप मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द फ्रेंड फंक्शन। सो फ्रेंड फंक्शन जो है F1 है, it is friend of class A. So using the object of class A, we can access any member we like. किसी भी मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। आप मेन फंक्शन में अभी क्योंकि मेन फंक्शन इज नॉट अ फ्रेंड फंक्शन, तो यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB1 और तो यहाँ पे हम OB2 बनाते हैं या OB बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास A, हम अगर OB डॉट फिल कॉल करते हैं तो चलेगा, OB डॉट शो कॉल करते हैं तो भी चलेगा। लेकिन आप अगर सी आउट करवाना चाहें \n, जैसे सी आउट कराना चाहें OB डॉट D1 या सी आउट कराना चाहें OB डॉट D2, ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक, ये दो स्टेटमेंट जो है वो एरर जनरेट करेंगे। आप देखिए एग्जीक्यूट करके अगर देखेंगे, एग्जीक्यूट करवा के मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एरर आ गया है। हाँ सॉरी, फिल फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स पास करना है, दोनों में एरर आ गया। से 10, 20 पास कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी 10, ऐसे 100, 200 पास करते हैं। एक आर्गुमेंट्स देना जरूरी था फिल फंक्शन में, दोनों में अपन ने दे दिया। ठीक, अब इसमें एरर देखिए कहाँ पे आ रहा है। एरर आ रहा है देखिए यहाँ पे, सी आउट कहाँ पे, OB डॉट D1। OB डॉट D1 जो है सी आउट जहाँ पे हम कर रहे हैं वो 26 नंबर जो लाइन है, देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 26 में है, यहाँ पे एरर आ रहा है। OB डॉट D1 इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट, सो D1 जो है कैनॉट बी एक्सेस्ड। ऑब्जेक्ट के बाहर D1 और D2 दोनों एक्सेसिबल नहीं है, देखिए D2 में भी एरर है, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमको एरर जनरेट करेंगे, बिकॉज D1 और D2 दोनों जो है वो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली, सो दे कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। सो OB डॉट लगा के आप मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से यू कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स, बट यू कैन ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। अब इसको कैसे प्रूव करूं मैं, F1 को कॉल कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, एंड आई विल कॉल F1। F1 को कॉल करते वक्त भी ऑब्जर्व करेंगे that I am not using any object dot or anything like that.
मेंबर एक्सेस को करना ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए मेंबर। ये फ्रेंड फंक्शन है, इट इज नॉट ए मेंबर फंक्शन। अब देखिए इसमें, इसको रन करते हैं। एक F1, सॉरी, F1 में आर्गुमेंट से ये था, आर्गुमेंट अपन ओबी दे देते हैं, तो ऑब्जेक्ट, अरे यार कहाँ गया यार, ठीक। अब इसको रन कर दिया मैंने, तो जस्ट ऑब्जर्व कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ओबी डॉट फिल के कारण D1 D2 200 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर F1 फंक्शन कॉल हुआ है विद द सेम ऑब्जेक्ट ओबी। इसी ऑब्जेक्ट को लेके अपन ने सेम फंक्शन को कॉल किया है, देखिए यहाँ पे। तो ये ओबी जो है कहाँ पे जाएगा, ऑब्जर्व करिए यहाँ, ये जो ओबी है F1 के अंदर जो ओबी पास हुआ है, इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड OB1 हियर। और OB1 डॉट फिल होगा, OB1 डॉट फिल होने के कारण क्या होगा, ओबी के अंदर का ही फिल फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो OB1 इज नथिंग बट ओबी, बिकॉज ये ओबी अपन ने पास ऑन किया है आर्गुमेंट। सो इसका फिल फंक्शन कॉल होगा, ओबी का फिल फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, तो ओबी के अंदर का जो डेटा मेंबर D1 D2 है वो 1020 हो जाएगा। OB1 डॉट शो करेंगे तो ये 1020 हमको मिलेगा। जो सेकंड 1020 जो सेकंड आउटपुट है D1 D2 का, इट इज 10 एंड 20 बिकॉज ऑफ दिस शो फंक्शन। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, सी आउट कराया अपन ने OB1 डॉट D1, OB1 डॉट D2, उसके कारण ये D1 D2 आउटपुट में मिल रहा है। सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे D1 एंड D2 बोथ आर प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। दे आर बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। दे आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, देखिए क्लास के बाहर एक्सेसिबल है। और इसमें यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स डॉट लगा के कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर्स डॉट लगा के एक्सेसिबल हो रहे हैं। इट इज द रीजन, इज द सिंपल रीजन बिहाइंड इट इज दैट बिकॉज दे आर इनसाइड फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट डॉट लगा के किसी भी मेंबर को, चाहे वो प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट। जो चीज आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, मेन फंक्शन में नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मेन इज सर नॉट ए फ्रेंड फंक्शन। हाँ बोलिए। सर ऋत्विक एंट्री मांग रहा था, वो बोल रहा था कोई और उसके नाम से आके म्यूजिक चला हाँ वो रहा था। डिस्टर्ब कर रहा है ना, कुछ नहीं कर सकता है वो। अच्छा, सर कोई और था चलिए, बोल रहा था वो। नहीं सर, वो उसने नहीं अभी नेक्स्ट न्यू ज्वाइन किया, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसका मैसेज आया था। अभी तो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं ऑटोमेटिक लॉगिन हो रहे हैं ना, ऑटोमेटिक लॉगिन हो सर ज्वाइन कर लिया हूँ बट ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था लॉगिन। रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे ठीक नाम है। से कोई और एंट्री करता है and वो एब्सेंट फिर करता है कुछ कंटेंट प्लेसर। हाँ देखो भाई, ध्यान रखना बस, है मैं ना। तो बोला हूँ सर, अब आगे लेट्स सी क्या होता है। वही है कि सर आप अब ऋत्विक का फेक आईडी को गूगल ग्रुप से निकाल दीजिए ना, फिर लॉगिन नहीं होगा वो। हाँ ठीक है, अभी अभी जैसे अगर मेरे पास तो वो रहता है ना कि इफ आई वांट आई कैन म्यूट और आई कैन रिमूव देम फ्रॉम द मीटिंग ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई न्यूसेंस होगा तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए। सो हियर इज द एग्जांपल। एग्जाम्पल सबको क्लियर है क्या? एग्जाम्पल जो मैं अभी दिया हूँ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मैं इसको कॉपी करके ना, मैं आई विल पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप चैट, क्योंकि इस चैट में देने से नहीं, ये आधा मैसेज सिर्फ कर रहा है, पूरा मैसेज देता नहीं है। मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, अगर जिसको भी ट्राई करना हो इमिडिएटली ट्राई कर सकता है। अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने इसको शेयर किया है, कोड है, ठीक। तो कोड को जो मैंने बताया है, फ्रेंड फंक्शंस के बारे में डिस्कशन अपन कर रहे थे, तो यहाँ पे अपन ने फ्रेंड को डिक्लेयर किया, F1 को एज ए फ्रेंड डिक्लेयर किया है। और F1 के अंदर का जो कोड है उसको ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग कि ये डॉट ऑपरेटर यूज करके, आप देखिए ऑब्जेक्ट का डॉट ऑपरेटर यूज करके जनरली क्या होता है कि हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के अंदर में ये पॉसिबल हो गया है। ऑब्जेक्ट डॉट लगा के आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं। D1 इज प्राइवेट मेंबर, D2 इज प्रोटेक्टेड मेंबर, दोनों को एक्सेस किया जा रहा है। प्राइवेट मेंबर है D1 और D2 जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर है, ठीक। ये दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जो चीज मेन फंक्शन में आप नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे देखिएगा इसमें एरर आ रहा था, मेन फंक्शन में आप ये डॉट ऑपरेटर यूज करके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास।
लेकिन क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेसिबल है, तो इसको स्पेशल राइट मिलता है. The friend function has special right to access the members. So using object, एक important चीज क्या है यहाँ पे, object is required. Using the object of the class, it can access all the members of the class. So this is the basic idea behind friend function. अब फ्रेंड फंक्शन को मैंने बाहर डिफाइन किया है क्लास के बाहर, आप इसको क्लास के अंदर भी इसके साथ साथ डिफाइन कर सकते थे. दैट आल्सो इज वैलिड, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, शो फंक्शन है, फिल फंक्शन है, वैसे ही फ्रेंड फंक्शन को भी आप बना सकते थे, वहीं पे आप उसको डिफाइन कर सकते थे. तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड फ्रेंड फंक्शन. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? द कोड दैट आई हैव शेयर्ड नाउ, एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए. नो सर. ठीक है, आज एक्चुअली काफी लेट हो गया है, सो वी विल स्टॉप डिस्कशन हियर. So I will suggest that please revise whatever I explained here. इसी फ्रेंड फंक्शन को यूज करके कुछ प्रोग्राम्स काफी अच्छे बनते हैं. उसको आप लोग एक बार थोड़ा ट्राई करके जरूर देखेंगे. बालगुरु स्वामी का जो बुक है उसको जरूर रेफर करते जाइए बीच बीच में, उसमें जो बैक एक्सरसाइजेस दिए हैं उनको करते जाइए, और अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछिए. ओके, चलिए अभी हम